Hello, my dear students. We'll discuss today the physiology of digestion. Physiology means it is the branch of science, it is the branch of biology in which we study the various body functions or the life processes that is known as physiology. We'll discuss today the physiology of digestion in human beings and this is the lecture number 9. हमें लेक्चर नंबर 9 पे आने के लिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे आने के लिए पहले हमें डिस्कस करना पड़ा इन द प्रीवियस क्लासेस दैट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. Life processes are mainly 4 types: nutrition, respiration, transportation and excretion. We had started the discussion of first life process in detail, that is what? Nutrition. We had discussed the types of nutrition. We are the multicellular organisms. We have complex body organization. To perform the each life process, we have the organ system or the body system. To perform nutrition, we have digestive system, and the digestive system is made up of 2 parts, the alimentary canal and digestive glands. In the previous lectures, we had discussed the digestive system in detail. तो अभी तक हमने जो 8 लेक्चर्स करे हैं उन 8 लेक्चर्स को आज यूज किया जाएगा टू स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. दैट इज कि आज का जो लेक्चर है, हमारी जो 8 क्लास हुई है उसका कंक्लूडेड पार्ट है, दैट हाउ बाय मेकिंग द यूज ऑफ ऑल दिस लेक्चर्स एंड क्लासेस एंड कॉन्सेप्ट्स विल डिस्कस टुडे द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. Before taking the physiology of digestion in the human beings, you must be knowing that the human beings are having holozoic nutrition, and the holozoic nutrition in which the organism takes the solid food and the complete process of nutrition occurs within the body of the organism. That is what the holozoic nutrition. The holozoic nutrition, it is completed in 5 stages. That is what? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Ingestion is what? The taking of food inside the body is known as ingestion. After ingestion, digestion starts, the process that converts complex form of food materials into simpler form or the indifferentiable form of food materials into differentiable form. डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल केविटी के अंदर और ये चलता है फेरिंग्स में, देन ईसोफेगस में, देन स्टमक में, देन अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन. बकल केविटी से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक होगा डाइजेशन. विल डिस्कस टुडे द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कि ये डाइजेशन होता किस तरह से है. सो विल डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. ये आपको एलिमेंटरी कैनाल को शो किया हुआ है दैट द फूड इज टेकन थ्रू द माउथ, देन इट गोज इनटू द बकल केविटी. जो मेनली या जो डाइजेशन शुरू होगा वो बकल केविटी में शुरू होगा. बकल केविटी में डाइजेशन के बाद में फूड जाता है फेरिंग्स में, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जहाँ पर किसी तरह का नया डाइजेशन नहीं होगा. यहाँ से 2 रास्ते शुरू होते हैं, एक होता है फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप. तो खाना है वो यहाँ से जाता है आगे फूड पाइप में, दैट इज व्हाट इन ईसोफेगस, और ईसोफेगस से खाना होते हुए जाता है दैट इज व्हाट इन स्टमक. स्टमक से फिर खाना जाएगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड. तो डाइजेशन हमारा जो मेनली हमने कहाँ डिस्कस करना है, द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बकल केविटी, देन डाइजेशन इन द स्टमक, देन द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमें एलिमेंटरी कैनाल के मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डाइजेशन डिस्कस करना है. इट इज द डाइजेशन इन बकल केविटी, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. बाकी के जो एलिमेंटरी कैनाल के पार्ट्स है वो कनेक्टिंग पार्ट्स हैं. So we will discuss
from where the digestion of food starts. Digestion in buccal cavity. Buccal cavity is this one. It contains teeth and tongue. इस बकल कैविटी के अंदर हमारा जो फूड है, it is mixed with the help of teeth and the tongue. The food is chewed and masticated with the help of teeth and tongue. In the buccal cavity, we have salivary glands. They become active and they release saliva. सलाइवा है, इसके मेनली 3 फंक्शन है बकल कैविटी के अंदर. इट किल्स द जर्म्स और द माइक्रोब्स इन द फूड और द बकल कैविटी. इट lubricates the food that is easy to swallow. And the saliva contains the carbohydrate digest enzyme, and that carbohydrate digest enzyme is known as salivary amylase. Its another name is ptyalin. What the salivary amylase do? It converts the starch into maltose. तो बकल कैविटी के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ salivary amylase. The another name for this is ptyalin that is present in saliva. It converts the starch, it converts the starch into maltose. बस बकल कैविटी में ये होगा, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है और माल्टोज एक डाइसेक्राइड है. खाना हम जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे. ये 3 मेन फूड कंपोनेंट है. बाकी के वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं. They are required for proper functioning of the body. Roughage is required to maintain the healthy digestive system. So the food is mainly composed of carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage. और पानी के बिना हमारा बॉडी के अंदर सेल्स काम नहीं कर सकती. वाटर हर जगह जरूरी है, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. तो बकल कैविटी के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन होगा. तो बकल कैविटी के अंदर हमने खाने को चबाया, मैस्टिकेट किया, ग्राइंड किया और कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन हो गया. तो गोलमोल एक फॉर्म बन जाएगी. दैट इज व्हाट द फूड बॉलस. जो फॉर्म ऑफ फूड बॉलस बनेगा वो बकल कैविटी से आगे जाएगा फेरिंग्स में, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. वहां से 2 पाइप शुरू होती है. द वन इज वेंट पाइप, अनदर नेम फॉर दिस इज ट्रैकिया, एंड अनदर वन द फूड पाइप, दैट इज व्हाट द ईसोफेगस. Wind pipe की opening glottis is covered by the flap, that is what epiglottis, and the food goes into the esophagus. The food goes into the esophagus. The food comes in this esophagus. This is the esophagus. Pharynx में और esophagus में there is no special digestion occurs. जो डाइजेशन होना है वो बकल कैविटी में हो चुका है. फेरिंग्स और ईसोफिगस है वो सिर्फ कनेक्शन का काम कर रही है फूड को आगे पहुंचाने का. तो जो फॉर्म ऑफ फूड बॉलस बनेगा उसको स्वेलो कर लिया जाएगा थ्रू द फूड पाइप. द फूड कम्स इन द स्टमक एंड विल डिस्कस नाउ द डाइजेशन ऑफ फूड.
in the stomach. Digestion in stomach. The medium of digestion in the stomach is acidic. Why the medium of digestion of the food in the stomach is acidic? That is because of the gastric glands. They are present in the stomach. In the stomach, we have gastric glands. As the food goes into the stomach, the gastric glands, they become active. As the food goes into the stomach, the gastric glands become active and they release the gastric juices. The gastric juices, they contains two things. The dilute HCl and the inactive form of protein digestive enzyme, that is what pepsinogen. मैं आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि as the food goes into the stomach, the gastric glands they become active and they release gastric juices. अरे भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ज़्यादा एक्टिव मत करो. सुबह 9 साढ़े 9 बजे ब्रेकफास्ट लो, 1 बजे लंच लो, 5 बजे कुछ रिफ्रेशमेंट लो, शाम को 8 बजे डिनर लो. इतना खाना जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ठीक है, इनफ. और जितना पेट में भूख हो उससे आधा फुल्का, 1 फुल्का कम खाएं तो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड से तरीके से काम करेगी. स्टमक के अंदर गैस नहीं बनेगी. The some are having the overeating. घर से ब्रेकफास्ट किया, मार्केट में निकले, बर्गर खा लिया. बर्गर पचा नहीं कि उससे पहले जूस पी लिया. लंच किया, शाम को मोमोज खा लिए, फिर मैगी खा ली. खाए जा रहे दिन भर. लगता है खाने के लिए ही पैदा हुए हैं. अगर खाने का इंटेक 8 बार है, 10 बार है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे विल बिकम मोर एक्टिव. और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी तो डाइल्यूट HCl ज़्यादा बनेगा. डाइल्यूट HCl ज़्यादा बनेगा तो पेट के अंदर गैस बनने लगेगी और वो बंदे हैं वो गैस पास करने लगेंगे. खुद भी दुख रहेंगे और आसपास वालों को भी दुखी करेंगे. तो खाना लिमिट में लें, उतना ही लें जितना हमें जीने के लिए चाहिए, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को उतना ही एक्टिव करें ताकि पेट के अंदर खाना पचे, आसपास के लोग परेशान ना हो. सो इन द स्टमक द मीडियम ऑफ डाइजेशन इज एसिडिक, दैट इज बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है. इन द स्टमक वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दे रिलीजेस द गैस्ट्रिक जूसेस. Gastric juices contains two things, that is what dilute HCl and pepsinogen. Dilute HCl. Dilute HCl, it creates the acidic medium in the stomach, and because of this, the medium of digestion in the stomach is acidic. Because of this, the digestion of food in the stomach is acidic. That is because of dilute HCl. It kills the germs or the microbes, and this HCl converts pepsinogen into pepsin. क्योंकि pepsinogen है, pepsinogen एक inactive form of protein digestive enzyme है, और dilute HCl converts the pepsinogen into pepsin. Pepsinogen is the inactive form of protein digestive enzyme and pepsin is the active form of protein digestive enzyme. And this pepsin, it starts the digestion of proteins. In the stomach, the proteins converts into proteases and peptones with the help of pepsin. तो स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन होगा. कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का स्टमक के अंदर डाइजेशन नहीं होगा. सिर्फ प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन होगा. दैट इज व्हाट द प्रोटीन्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, एंड आफ्टर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द स्टमक, द फॉर्म ऑफ फूड बोलस फॉर्म्ड इन द स्टमक इज नोन एज chyme.
This is known as chyme. It is a type of food bolus. It is a type of food bolus. So how you will define the chyme? आप chyme को define कैसे करेंगे? The form of food bolus, it contains the partially digested carbohydrates, partially digested proteins, mixed with saliva in buccal cavity, mixed with gastric juices in the stomach, and what are the form of food bolus is formed that is known as chyme. Chyme स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीनों फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन होगा, मैक्सिमम डाइजेशन होगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द लिवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. बिफोर गोइंग इनटू द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे कि जो इन्फेंट्स हैं, जो 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, दे आर इन्फेंट्स, उनके अंदर पेप्सिनोजन नहीं होगा, उनके अंदर होगा प्रोरेनिन. प्रोरेनिन. And this prorenin, it converts into renin with the help of dilute HCl. The prorenin, it converts into renin with the help of dilute HCl. And what the renin do? This converts casein into paracasein. Casein is the insoluble form of protein digest enzyme, and paracasein is casein is the soluble form of milk protein, and paracasein is the insoluble form of milk protein. So what the renin do? The renin converts casein, the soluble form of milk protein, into paracasein, the insoluble form of milk protein. And this is known as curdling of the milk. This is known as curdling of milk. मतलब ये हुआ कि क्या बच्चा है, दही बनाने की फैक्ट्री है, हाँ, 2 साल का, 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दूध पीता है और कई बार वॉमिटिंग करता है, तो यूँ लगता है कि जैसे उसके मुंह से दही बाहर निकल गया है. वो कर्डल्ड मिल्क है. वो कर्डल्ड मिल्क बनता क्यों है? वो इसके कारण बनता है क्योंकि इन्फेंट्स के अंदर पेप्सिनोजन नहीं होगा, प्रोरेनिन होगा. डाइल्यूट HCl converts prorenin into renin. What the renin do? It converts the casein, the soluble form of milk protein, into paracasein, that is the insoluble form of milk protein, and this is known as curdling of the milk. तो आपको पूछे how the digestion of proteins occurs in the infants, so you have to explain like this. ये आपको ओलंपियाड्स में, NTSA में इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है. 10th के CBSE में आपको कर्डलिंग ऑफ मिल्क नहीं पूछा जाता है. तो स्टमक के अंदर जो फॉर्म ऑफ फूड बोलस बना वो कायम है. इट कंटेन्स पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स जो बकल कैविटी में हुआ. इट कंटेन्स पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो स्टमक में हुआ. देन कायम जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द फूड अकर्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर इज द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द फूड अकर्स. एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज 6 मीटर लॉन्ग, तो स्पेस बहुत है फूड को रहने के लिए, उसको अच्छा टाइम मिल जाएगा.
और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स विद द हेल्प ऑफ लिवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तीन ग्लैंड्स का यूज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड दैट्स व्हाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज द मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ द फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के लिए कंडीशन तैयार करता है लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ पैंक्रियाज, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। किस तरह से, देखें बोर्ड पे। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में है लिवर है। लिवर, इट इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। लिवर रिलीज करता है बाइल जूसेस। बाइल जूसेस आर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से बाइल जूसेस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज इन द डियोडेनम पार्ट। डियोडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, and it creates alkaline medium, the basic medium. So the medium of digestion in the small intestine is basic, the alkaline, that is because of liver. दूसरा फंक्शन लिवर का कि लिवर जो रिलीज करता है बाइल जूसेस, the bile juices they bring out the emulsification of fats. What is the emulsification of the fats? The breaking of the large fat globules into smaller fat globules is known as emulsification. Due to emulsification, the surface area for the fat digest enzymes increases, and the fat digest enzymes get the more surface to act, and because of that, the fat digestion becomes easier and efficient. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के लिए कंडीशंस को तैयार करता है लिवर। यहां तक जो हमने डिस्कस किया, इट इज ऑल ड्यू टू द लिवर, ये लिवर के कारण है। देन पैंक्रियाज का रोल। पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूसेस। पैंक्रियाटिक जूसेस बाय द पैंक्रियाटिक डक्ट आएंगे डियोडेनम में, द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज व्हाट अमाइलेज, दैट कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माल्टोज। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, किस तरह आपने अभी पहले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि बकल केविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स दे कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज, और फिर से आप कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहे हो। अरे भाई, हम खाना खाते हैं बकल केविटी के अंदर, खाना कितनी देर रुकता है? हाँ, आप खाने को आराम से खाते हैं, अच्छे से धीरे धीरे चबाते हैं, चबाना भी चाहिए। तो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स दे कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज, फिर भी सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स बकल केविटी में माल्टोज में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि फूड टूटता जाएगा। उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, वाइटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, वाटर भी है, रफेज भी है। उस फूड में सारी चीजें हैं। जैसे जैसे उसका ब्रेकडाउन होता जाएगा, ये फूड कंपोनेंट्स हैं, सब अलग होते चले जाएंगे। कुछ लोग गबड़ खाते हैं, जल्दी खाते हैं, वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को मौका ही नहीं देते कि उनके कार्बोहाइड्रेट्स से थोड़े बहुत भी माल्टोज में कन्वर्ट हो जाए, वो तो निगल ही लेते हैं जैसे भूखे हैं। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स का माल्टोज में कन्वर्जन बकल केविटी में नहीं होता है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना है वो लगभग 2-3 घंटे रुकता है, एंड the amylase get the sufficient time to convert all the carbohydrates into maltose. Then fats, we have the fat digestive enzyme. That is what lipase.
दिस कन्वर्ट द फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स का डाइजेशन अब शुरू हुआ है। फैट्स का डाइजेशन अभी शुरू हो रहा है और अभी खत्म हो गया है। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। दिस प्रोसेस इज नॉन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। हाइड्रो यानी वाटर एंड लिसिस यानी ब्रेकिंग ऑफ, द ब्रेकिंग ऑफ द फैट्स। आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेयर द डाइजेशन ऑफ फैट्स अकर्स एंड बाय व्हाट प्रोसेस द डाइजेशन ऑफ फैट्स अकर्स। The digestion of fats occurs in the duodenum, the part of small intestine, by the process of hydrolysis of fats. What happens in the hydrolysis of fats? The fat digest enzyme lipase, it converts the fats into fatty acids and glycerol. This is the hydrolysis of fats. Digestion is the process that converts the complex form of food materials into simpler form. It converts carbohydrates into glucose, तो ग्लूकोज तो अभी नहीं बना। It converts the fats into fatty acids, वो बन गया है। तो फैट्स का डाइजेशन खत्म हो गया है। Then प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स जो पेट में बने, जो स्टमक में बने, विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन इट कन्वर्ट्स इनटू पेप्टाइड्स। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड्स। क्या अमीनो एसिड्स बना? नहीं बना। तो इसका मतलब अभी प्रोटीन्स का डाइजेशन खत्म नहीं हुआ है। डाइजेशन द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज बना? नहीं बना। तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी डाइजेशन खत्म नहीं हुआ है। फैट्स कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स। बना? तो फैट्स का डाइजेशन खत्म है। तो फैट्स का डाइजेशन पैंक्रियाज शुरू करता है और पैंक्रियाज ही खत्म कर देता है। ये सब कुछ हुआ पैंक्रियाज के कारण। द सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के लिए कंडीशंस को तैयार करती है। नाउ द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज कंप्लीटेड बाय इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स दे रिलीजेस द इंटेस्टिनल जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। दैट इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। This succus entericus, it contains the carbohydrate digest enzyme maltase that converts the maltose into glucose. Digestion is the process that converts carbohydrates into glucose। बन गया है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी खत्म हो गया है। This succus entericus, it contains erapsin, the protein digestive enzyme that converts peptides into amino acids. Digestion is the process that converts proteins into amino acids। बन गया है। बन गया तो खा लो, तो बन गया है amino acids। And now the digestion of food is completed। Digestion is the process that converts complex form of food materials into simpler form. It converts carbohydrates into glucose, fats into fatty acids, proteins into amino acids. The digestion is over. Digestion जरूरी है ताकि फूड का अब्जॉर्प्शन हो। जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स है वो इनडिफ्यूजेबल फॉर्म है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं आ सकते। लेकिन जो डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड है वो डिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड है। दैट इज व्हाट ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स है। इनके मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है, दे कैन मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, तो ये डिफ्यूजेबल फॉर्म है। तो मैं ये कहूं द डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर फॉर्म और द indiffusible form of food materials into diffusible form। Food by the process of digestion diffusible form में आ चुका है
ताकि अब अब्जॉर्प्शन हो, बिकॉज वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन खत्म, फिर हो जाएगा अब्जॉर्प्शन, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ दिस डाइजेस्टेड फूड, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ दिस डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड एंड दैट इज व्हाट अब्जॉर्प्शन। जो फूड अब्जॉर्ब बॉडी में हो जाएगा by the blood, it is carried to the cells and liver, हो जाएगा assimilation, the utilization of digested food to get energy, repair and growth, and that is what assimilation। हमने जो खाना खाया इट इज नॉट 100% डाइजेस्टेड। हमने जो खाना खाया अगर वो 100% डाइजेस्ट हो जाएगा तो मॉर्निंग के अंदर टॉयलेट्स का यूज ही नहीं होगा, पॉटी नहीं बनेगी। पॉटी क्यों बनती है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके कारण पोटी बनती है, फेसल मैटर बनता है। मान लो हमने जो खाना खाया उसका 60% डाइजेस्ट हो गया, वो 60% फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में अब्जॉर्ब होगा और एसिमिलेशन होगा। जो 40% फूड है जो अनडाइजेस्टेड है, लूज होगा, पतला होगा, जैसे लूज मोशन के टाइम आता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी एंड द फेसल मैटर इज फॉर्म, इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम, इट इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस एंड दैट इज व्हाट इजेशन। वी द ह्यूमन बीइंग्स हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेजेस, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन इन इजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, द न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस is over by this lecture. Thanks to listen me. और मेरा बोलना आपको अच्छा लग रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल करें, मेरे से बात करें। YouTube के ऊपर 3 दिन तक ये लेक्चर ओपन रहेगा। आप चाहते हैं कि लेक्चर्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को पुश कर दें। थैंक यू।